If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Chief guest Shri Pradipta Kumar Sahu, Commandant of 29 Battalion CRPF, other officers of 29 Battalion CRPF, our respected Principal Mr. Yusuf Sir, Nodal Officer Mudassir Ahmed, and the other dignitary guests. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. With great honor and enthusiasm, I, Muntaha Muzaffar, stand before you today as your welcome speaker to begin this meaningful and beautiful journey together. Alhamdulillah, today is a blessed day. Today we begin a journey of knowledge, skill and excellence through the Front Office Associate course. This program is not just about learning office skills, it's about helping, becoming capable, confident and professional individuals. The kind of people in our Islam also teaches us to be. Front Office Associates are the first smile, the first helping hand and the first solution for everyone who enters an organization. Imagine the power of being that person who welcomes, guides and solves the problems with sincerity. That is the real essence of this program. A heartfelt thank you to the Commandant Sir, Mr. Shri Pradipta Kumar Sahu, Commandant of 29 Battalion CRPF, and our mentors who have given us this opportunity to learn, grow and have given us this opportunity to serve our talent. Let's all embrace this learning with honesty, dedication and a spirit of excellence, because every good skill we acquire is beneficial for us. So dear friends, let's start this journey with energy in our hearts and knowledge in our minds. Once again, welcome everyone and let's make today the first step towards becoming the best, most capable and most sincere versions of ourselves. Thank you so much. Honorable Chief Guest Shri Pradipta Kumar Sahu, Commandant of 29 Battalion CRPF and the other officers of 29 Battalion CRPF, our respected Principal Mr. Yusuf Sir, Nodal Officer Mudassir Ahmed and the other distinguished guests and my dear audience. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I am Muntaha Muzaffar from grade 9 and I have the incredible honor of being your host for today's very special and exciting event, our vocational training program on the Front Office Associate course. Now I know what you are thinking. Front Office? What is it? Is it that just answering calls and saying, hello, how may I help you? But let me tell you, it's far way more than that. It's about impression, professionalism, communication and a dash of charm. Today is 1st April 2026, a day that marks a unique opportunity for all of us to learn the essential skills of professionalism, communication and front office management skills that help us in both our academic and professional lives. Before we begin, let me share how privileged we are today, because we are in the presence of the chief guest, that's Shri Pradipta Kumar Sahu, the Commandant of 29 Battalion CRPF, Nodal Officer Mudassir Ahmed and our beloved trainer Miss Lubna ma'am, who will inspire us today through their words and experience. Now to formally start this wonderful event, I'd like to invite the Nodal Officer Mr. Mudassir Ahmed, who will come and guide us about this event. Please give a huge round of applause to Mr. हुनर को अपना मुकद्दर बना के चलना है, हुनर को अपना मुकद्दर बना के चलना है, यही वो रास्ता है जो बुलंदियों तक ले जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good afternoon, everyone present here. जैसे बेटा आपने भी मेरा नाम सुना ही, मैं मिस्टर मुदस्सिर एज अ नोडल ऑफिसर ऑफ दिस प्रोग्राम। दरअसल बेटा अगर हम 29 बटालियन सीआरपीएफ की भी बात करेंगे, जिन्होंने
ऑलमोस्ट इस ईयर में 2000 जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 इसमें करीबन 5 वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज मतलब अपने यूनिट के थ्रू अपने बटालियन के थ्रू यहाँ पे मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में मतलब मुनक्कद किए हैं, जिसमें आप बच्चे खुशकिस्मत है कि आप बच्चों की ये हायर सेकेंडरी उन्होंने फाइनलाइज की, उन्होंने रिकमेंडेशन डाली है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में। Thank you so much, Mr. Mudassir sir, for your inspiring words and for guiding us. It was truly incredible. Next, it's my honor and privilege to invite Shri Pratipta Kumar Sahu, the Commandant of 89 Battalion CRPF, whose vision and dedication have made this program possible. Sir, we are eagerly waiting for you. Give a big and huge round of applause. मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? Am I audible? लास्ट मैम? अच्छा, आज के मैं हिंदी में आप लोगों से बातें करूंगा। आज के हमारे इस सभा मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुजगुन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल महोदय सर, हमारे नोडल अफसर मिस्टर मुदासिर साहब, बाकी जो आपके ट्रेनर लुमना मैम, बाकी हमारे अन्य टीचर मैम जो भी बैठे हुए हैं सभी, ये जो प्रोग्राम आप लोग आज सुन रहे हैं या स्टार्ट होगा कल से या परसों से, ये प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज से लगभग 6 मंथ्स हो गया होगा, कुछ इनिशिएटिव हम लोग अपनी तरफ से करने का प्रयास किए। उसके बारे में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम करना चाहते हैं और यहाँ की जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो भी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हम लोग कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से एजुकेट करना चाहते हैं। आप लोगों को विदित होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी प्रोग्राम्स रहती है, पता है कि नहीं? तो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वही स्किल सीखने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी। हमेशा मैं आप लोगों को कहूँगा पढ़ाई के अलावा कुछ भी संभव नहीं है दुनिया में। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ बाय वर्च्यू ऑफ माई एजुकेशन, बाय वर्च्यू ऑफ माई स्किल, बाय वर्च्यू ऑफ माई टैलेंट, बाय वर्च्यू ऑफ माई डेडिकेशन, परसिवरेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, वट एवर इट इज। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हार्ड वर्क अटमोस्ट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। और जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, स्किल डेवलपमेंट जो भी कोर्सेस आपके सामने आता है वो एक आपकी इच्छा शक्ति को, आपकी मोटिवेशन लेवल को, आपकी जो पढ़ाई के साथ साथ और कुछ सीखने का जो इच्छा को बढ़ाता है। आपकी स्कूल आउट ऑफ सो मेनी स्कूल्स सिलेक्ट हुआ है। आपकी स्कूल्स के लिए ये जो भी प्रोग्राम फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स, ये जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट हुआ है, इसमें कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप ऑफिस के सामने ना फ्रंट ऑफिस में बैठेंगे रिसेप्शनिस्ट के तौर पे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्किल है, कैसे वो ऑफिस को मैनेज किया जाता है वो बताया जाएगा। ये एक छोटा सा समय है आपके साथ, उस समय को भरपूर फायदा उठाइएगा और समय को भरपूर सदुपयोग करिएगा। मतलब उसकी जो भी टाइम है, जो भी आपका कोर्स करिकुलम है, उसको मिस मत होने दीजिएगा। इसी के आगे कभी आपको मौका मिले मैनेजमेंट के ऊपर भी आप पढ़ेंगे, कॉमर्स अकाउंटिंग के ऊपर भी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, एसोसिएट्स में काम में आता है। आप जब बेसिक स्किल्स थोड़ा सा समझ लेते हैं, धीरे धीरे आपको जहां भी मौका मिलेगा तो फिर उस चीज को आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अच्छे ढंग से अपना पाते हैं।
तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा, जो है विलिंगली इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे वो बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो भी टाइम टेबल प्रिंसिपल सर फिक्स करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, आपकी क्लासेस का जो टाइम शेड्यूल है वो मेंटेन रहे आप, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम में ही आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इधर क्लास के शुरुआत में हो या क्लास के बाद में हो या क्लास के बीच में हो, वो प्रिंसिपल सर डिसाइड करेंगे। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे भी किसी समय में मैं भी आप लोगों के तरह क्लासरूम में बैठा रहता था। समझ पा रहे हैं कि नहीं? yes, sir. आज उसी क्लासरूम में से निकल कर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी मेहनत करिए। जो भी चीज़ सिखलाई दिया जाता है, आप अनुमान करिए, जब हमने पास आउट किया अपनी स्कूल बहुत समय पहले, उस समय ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। घर से उठते थे, अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई करते थे सुबह, फिर आप लोग अभी देखिए कई बच्चे हमारे स्कूल बस में आ रहे हैं, कई बच्चे अपनी पेरेंट्स लेके, हकीकत है ये जीवन का हकीकत है। वो बैग से अपनी जो भी किताबें वगैरह लेके, फिर किताबें कहाँ से, मैंने सीनियर जो भाई लोग होते थे या दीदी लोग होते थे उनको मांगते थे कि आपने तो पास कर लिया, किताब दे दीजिए। 8th क्लास तक किताब मिल जाता था। 9th और 10th कंबाइंड एग्जाम होती थी, 10th एग्जाम। 9th का भी क्लासेस ना जो उसको 2 साल की एक बार एग्जाम होती थी, तो फिर 9th में मिल नहीं पाता था। फिर वो दीदी या भैया जो भी गांव के होते थे, रात को या दिन में दोपहर को जाकर उनके घर में बैठ के किताब पढ़ाई करते थे। परिस्थिति थी उस समय, हालत भी ऐसे ही था। अभी आप देखिए आपके पास आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके पेरेंट्स कितना आपको हर चीज में आपको मोटिवेट कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ साथ आप देखिए उस समय की स्कूल्स की हालत क्या थी, अभी स्कूल्स की हालत क्या है। अभी सरकार भी चाह रहा है कि भांति भांति की आपको ट्रेनिंग दिया जाए। तो मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये समय को गवारा, मैंने जो कहते हैं ना, गवाइए मत, आराम से उसका भरपूर फायदा उठाइए। और जो भी आपके तरफ से इतना प्रश्न होना चाहिए ना, हमारी जो मैडम बैठी हुई है वो परेशान हो जाए पढ़ा के, कि और भी कुछ जरूरत पड़ने पर उनको भी पढ़ के आके आपको पढ़ाना पड़े। समझ पा रहे कि नहीं? yes, sir. यदि टीचर को आप एंगेज नहीं कर पाए तो फिर नहीं सीख पाए। कोई भी टीचर हो, आपको 1 घंटे का या आधे घंटे का क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आपके मन में कम से कम 10 प्रश्न होना चाहिए, तभी आप फायदा उठा सकते हैं टीचर पे। आपको पता नहीं टीचर के अंदर कितनी ताकत है। कभी टीचर को छोटा मत समझिएगा, ठीक है? जो भी प्रिंसिपल है, मैम है, टीचर जो भी है, वो गुरु का दर्जा जो है ना सर्वोपरि होता है। मैं चाहे कितना भी ऊपर चले जाऊं, आज किसके बदौलत? मेरे माँ बाप की आशीर्वाद और जो बड़े जो गुरुजन है, गुरु जो जिसको बोलते हैं टीचर, उनकी आशीर्वाद, उन्होंने जो भी सिखाया है आज उसी की बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो टीचर कोई भी लेवल का हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको उनसे सीखिएगा। और ये भी हमारा जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एक छोटा सा टीचिंग प्रोग्राम है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस साल हम लोग स्टार्ट किए हैं कई सारे स्कूल्स में। हो सके कुछ प्रोग्राम और भी जा रहा है, उसमें भी और भी बहुत सारे स्कूल्स को वो डेडिकेट करेंगे और भी बहुत सारे स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे। बढ़िया से सीखे, बढ़िया से खुद को सेटिस्फाई करें कि यस आई हैव लर्न समथिंग। और साथ में जो भी एंड ऑफ द सेशन आपको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दी जाएगी। कभी ये मत सोचिएगा कि अटेंड कर लिया तो सर्टिफिकेट सर दे देंगे ना, प्रिंसिपल सर एग्जाम करेंगे, लुबना मैम एग्जाम बोर्ड में रहेंगे, और भी मैडम और सर रहेंगे, ठीक है? वो लोग जिनको सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को पास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग की तरह होनी चाहिए। ट्रेनिंग में यदि हम नौकरी करेंगे तो फिर ट्रेनिंग की तरह नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? yes, मैं ट्रेनिंग ठीक से नहीं किया होता तो मुझे भी प्रमोशन नहीं मिलती। मैं आज जिस पदवी पर, जिस पोजीशन पर पहुंचा हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
much, sir, for those motivating words. Your words were truly incredible. I'm sure that everyone here is feeling inspired and ready to learn the skills that make a great front office associate. Now, we are having an incredible privilege and pleasure to welcome our beloved and beautiful, our trainer, Miss Lubna Khan. Please welcome her. Round. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great privilege and it's a great pleasure for me to be here in front of you as a trainer of skill developmental course, including communication skill and additionally the front office associate. Communication is not just speaking English. Communication का मतलब नहीं है सिर्फ आप English बोलते हो. It's about how confidently and how clearly you express yourself in front of anyone. आज के ज़माने में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई क्लाइंट आता है, कोई भी इंसान आता है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखता है पहले. How clearly and how confidently you are expressing yourself. आप कैसे अपने अल्फाज रखते हो उनके सामने. How is my first impression? कभी अभी मैं पहले आ गई सुबह, किसी ने मुझे बोला मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. किसी ने मुझे बोला थैंक यू फॉर दैट कमेंट. बट किसी ने बोला जब आपने रियलाइज किया, जब आपने देखा मैम की स्माइल ठीक है, तभी आपने मुझे बोला. अगर मैं आप ऐसे खुडूस की तरह होती आपके सामने, आप मुझे बोलते नहीं बोलते. फ्रंट ऑफिस एसोसिएट क्या होता है? व्हाट इज फ्रंट ऑफिस एसोसिएट? रोल क्या है फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का? इन शॉर्ट, इट्स द फेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. मैं बोल रही हूँ, जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं हम फ्रंट डेस्क पे जाते हैं. जब हम होटल्स में रूम बुक करने जाते हैं हम फ्रंट डेस्क पे जाते हैं. वहां पे सिर्फ आपका काम नहीं निकलता, वहां पे आपको लगता है कि फ्रंट ऑफिसर ने आपके साथ कैसे, किस तरीके से आपको वेलकम किया, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे थे, उसके फेस पे स्माइल कैसी थी. Many students think that इंग्लिश आना जरूरी है. सब सोच रहे हैं ना इंग्लिश आना जरूरी है. Yes, it is important, but the more important is confidence. अभी मैं बिचस विनकेनस तो ऐसे करान बाइलिंगुअल, मेरी कश्मीरी भी जा रही है, इंग्लिश भी जा रही है, उर्दू भी जा रही है. इम्पॉर्टेंट क्या छु? कॉन्फिडेंस. तह मज क्युथ कॉन्फिडेंस छु तो कित पर छु पने वर्ड्स करान यूज. अगर आप सिंपल इंग्लिश में भी बात करेंगे लेकिन तथ मज आइस कॉन्फिडेंस, यू कैन इम्प्रेस एनीवन अराउंड. किसी को भी आप इम्प्रेस कर सकते हैं. As a trainer, my goal is not just to teach you your subject, but to help you speak fluently, improve your personality skills, and prepare you for your life situations. Because skills change your life. Speaker from our own school, from the grade 10th, that's Falakun Nisa. Please welcome her with a big hand of applause. Honorable Principal Sir, respected chief guests, and other dignitaries, good afternoon everyone. I am Falakun Nisa from class 10. Today I am here to deliver a speech on front office associate courses. There are several front office associate courses that train people to work in offices, hotels and companies. Some common courses are: what is front office associate course? Do you know what's it? Anyone? Anyone? It will tell you what is front office associate course. Favorite Principal Sir and other dignitaries and my dear friends. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Today, it's my honor to speak about vocational skills. Vocational skills are practical skills that help people perform specific jobs such as carpentry, tailoring, cooking,
cooking, electrical work, computer operation, and many others. These skills are very important in our daily lives because they help people become independent and capable. Vocational training's focus is more on practical learning rather than theoretical. बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इसके मुस्तहक़ आप लोग हैं, और साथ ही साथ हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर CRPF के और इनके साथ आए हुए बाकी उनके डिपार्टमेंट के लोग, इनका मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द हाई सेकेंडरी स्कूल मुजगुन, क्योंकि आप लोगों ने ये मौका हमारे बच्चों को दे दिया। ये मैं भी जानता हूँ कि ये हर किसी को ये मौका नसीब नहीं होता, ये किसी मतलब स्कूलों के लिए मौका है। उसी हिसाब से इन सबको शामिल करके एक पॉलिसी बनाया जाता है। मेरे ही पीरियड में जब से मैं मतलब यहाँ पे जब मैं टीचर लगा इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए, तब से आज तक बहुत सारे पॉलिसीज़ बने। सबसे पहले मैं टीचर अपॉइंट हुआ था, फिर इसके बाद प्रमोशन होते होते आज इस ओहदे पे पहुँचा हूँ। तो तब से आज तक बहुत सारे पॉलिसीज़ बने, 1986 में भी बना था। लेकिन इस साल का जो पॉलिसी में मुझे सबसे दो चीज़ जो है ना मुझे पसंद आया इस पॉलिसी में, वो एक है फ्री स्कूलिंग का। गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना, प्राइवेट स्कूल में यहाँ तो फ्री स्कूलिंग होते थे नर्सरी लेवल पे, फिर इसके बाद KG UKG, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का ये नहीं होता था। तब जाके जो है ना प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा काबिल होते थे। एक पॉलिसी में ये ऐड किया था उन्होंने, अब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी उन्होंने फ्री स्कूलिंग का ये सिस्टम रखा है। अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी नर्सरी LKG UKG की क्लासेस होते हैं। नंबर 1। दूसरी जो बात उन्होंने जो सबसे अच्छा रखा था वो वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम। ये क्लास 6 से स्टार्ट होते हैं, 6ठी से स्टार्ट होते हैं, और इसको पूरा मतलब इम्प्लीमेंट होने में अभी कुछ टाइम लगेंगे। 2030 तक इसको सारे स्कूलों में सारे बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, ये वोकेशनल एजुकेशन के रिलेटेड। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? पहले हम क्या करते थे, मैंने खुद मतलब जब मैं जिस महल में मैं रहता हूँ, एक्चुअली सर आई एम फ्रॉम करगिल लद्दाख, तो मैं जिस महल में मैं रहता हूँ वहाँ मतलब लोग जो है ख़ास पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ जो 10th में पढ़ती थी, ज़मींदारी लेवल पे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन स्कूल कभी जाते ही नहीं थे। मैंने उनको एक बार समझाया, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? जो मेहनत आप इस मजदूरी में कर रहे हैं